اور جو لوگ اطاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، نیک بندے، اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار لے لو، پھر جدا جدا دستوں کی صورت میں یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو کہے کہ اللہ نے مجھ پر انعامات کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا، اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل نعمت پہنچے تو ضرور کہے گا گویا جیسے کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ سو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی بیچتے قربان کرتے ہیں آخرت کے بدلے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے ہم عنقریب اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ کمزور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ ایمان لانے والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافی لڑتے ہیں طاغوت، سرکش، مفسد کے راستے میں۔ سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال کمزور بودا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور قائم کرو نماز اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں اور تھوڑی مدت کیوں نہ مہلت دی؟ کہہ دے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور تم پر ظلم نہ ہوگا دھاگے برابر بھی۔ تم جہاں کہیں ہوں گے تمہیں موت پا لے گی، اگرچہ تم ہو برجوں میں مضبوط، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کچھ برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس قوم کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھتے نہیں لگتے، بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے۔ جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس سے ہے، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے گردانی کی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا۔ وہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، پھر جب باہر جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے۔ پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں سے ضرور بہت اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی تو اس میں سے مسحور کر دیتے ہیں، اور اگر اس سے پہنچاتے رسول کی طرف اور اپنے حاکموں کی طرف تو وہ جو لوگ ان میں سے حقیقت کر لیا کرتے ہیں اس کو
जान लेते, और अगर अल्लाह का फजल न होता तुम पर और उसकी रहमत न होती तो चंद एक के सिवा तुम शैतान के पीछे लग जाते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में लड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकल्लफ नहीं मगर अपनी जान के और मोमिनों को आमादा करे। करीब है कि अल्लाह रोक दे काफिरों की जंग का जोर, और अल्लाह की जंग सख्त तरीन है और उसकी सजा सबसे सख्त है। जो कोई नेक बात में सिफारिश करे उसके लिए उससे हिस्सा होगा, और जो कोई सिफारिश करे बुरी बात में उसको उसका बोझ हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और जब तुम्हें कोई मुआदे सलाम करे तो तुम उससे बेहतर दुआ दो या वही कह दो, बेशक हर चीज का हिसाब करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वह जरूर तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, और कौन ज्यादा सच्चा है बात में अल्लाह से। सो तुम्हें क्या हो गया है, मुनाफिकीन के बारे में दो गिरोह हो रहे हो और अल्लाह ने उन्हें औधा कर दिया उसके सबब जो उन्होंने किया। क्या तुम चाहते हो कि उसे राह पर लाओ जिसको अल्लाह ने गुमराह किया, और जिसको अल्लाह गुमराह करे तुम हरगिज उसके लिए कोई राह न पाओगे। वह चाहते हैं काश तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वह काफिर हुए तो तुम बराबर हो जाओ। बस तुम उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ यहाँ तक कि वह हिजरत करे अल्लाह की राह में। फिर अगर वह मुंह मोड़े तो तुम जहां कहीं उन्हें पाओ पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को न दोस्त बनाओ न मददगार, मगर जो लोग ताल्लुक रखते हैं ऐसी कौम से कि तुम्हारे उनके दरमियान मुआवदा है, या तुम्हारे पास आए उस हाल में कि तंग हो गए हैं उनके दिल उस बात से कि तुम से लड़े या अपनी कौम से लड़े। और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता तो वह तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर वह तुमसे किनारा कस रहे फिर तुमसे न लड़े और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम डाले तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर सताने की कोई राह नहीं रखी। अब तुम और लोगों पाओ जो चाहते हैं कि वह तुमसे भी अमन में रहें। अब तुम और लोग पाओगे जो चाहते हैं कि वह तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। जब कभी फितना फसाद की तरफ बुलाए जाते हैं तो उसमें पलट जाते हैं। बस अगर तुमसे किनारा कसी न करे और वह न डाले तुम्हारी तरफ पैगाम में सुलह और न रोके अपने हाथ तो उन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहां कहीं तुम उन्हें पाओ। और यही लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें खुली सनद हुज्जत दी। और नहीं किसी मुसलमान के साया कि वह किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर गलती से, और जो किसी मुसलमान को कत्ल करे गलती से तो वह एक गुलाम आजाद करे और खून बहा उसके वारिसों के हवाले कर दे मगर यह कि वह माफ कर दे। फिर अगर वह तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और वह खुद मुसलमान हो तो आजाद करे एक मुसलमान गुलाम। और अगर ऐसी कौम से हो कि उनके और तुम्हारे दरमियान मुआवदा है तो खून बहा उसके वारिसों के हवाले कर दे और एक मुसलमान गुलाम को आजाद कर दे। सो जो न पाए मैसर न हो तो माह लगातार रोजे रखे। यह तौबा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और जो कोई किसी मुसलमान को दानिस्ता कत्ल कर दे तो उसकी सजा जहन्नम है, वह हमेशा रहेगा उसमें और उस पर अल्लाह का गजब होगा और उसकी लानत और उसके लिए अल्लाह ने बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफर करो तो तहकीक कर लिया करो और जो तुम्हें सलाम करे उसे न कहो कि तुम मुसलमान नहीं है, तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी का सम्मान, फिर अल्लाह के पास बहुत गनीमतें हैं। तुम उसी तरह थे इससे पहले
तो अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। सो तहकीक कर लिया करो, बेशक जो तुम करते हो उससे अल्लाह खूब बाखबर है। बगैर अजर बैठ रहने वाले मोमिन और वह बराबर नहीं जो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करने वाले हैं। अल्लाह ने फजीलत दी दर्जे में अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को, बैठ रहने वाले पर, और हर एक को अल्लाह ने अच्छा वादा दिया है। और अल्लाह ने मुजाहिदों को बैठ रहने वालों पर फजीलत दी है अजर अजीम के एतबार से। उसकी तरफ से दर्जे है और बख्शीश और रहमत है, और अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। बेशक वह लोग जिनकी फरिश्ते जान निकालते हैं उस हालत में कि वह जुल्म करते थे अपनी जानों पर, वह फरिश्ते कहते हैं तुम किस हाल में थे? वह कहते हैं कि हम बेबस थे इस मुल्क में। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसीयत न थी, बस तुम उसमें हिजरत कर जाते। सो यही लोग हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है और वह पहुंचने पलटने की बुरी जगह है। मगर जो बेबस है मर्द और औरतें और बच्चे की कोई तदबीर नहीं कर सकते और न कोई रास्ता पाते हैं। सो उम्मीद है कि ऐसे लोगों को अल्लाह माफ फरमाए, और अल्लाह माफ करने वाला बख्शने वाला है। और जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करे वह पाएगा जमीन में बहुत वाफिर जगह और खुशादगी। और जो अपने घर से हिजरत करके निकले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका अजर अल्लाह पर साबित हो गया, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जब तुम मुल्क में सफर करो पस नहीं तुम पर कोई गुनाह की, तुम नमाज कसर करो, कम कर लो, मगर तुमको डर हो कि तुम्हें सताएंगे काफिर, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हो फिर उनके लिए नमाज कायम करें। नमाज पढ़ने लगे तो चाहिए कि उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो, और चाहिए कि वह अपने हथियार ले ले। फिर जब वह सिजदा कर ले तो तुम्हारे पीछे हो जाए। और अब आए दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी, बस वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े, और चाहिए कि वह लिए रहे अपने बचाव और अपना असलिहा। काफिर चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने सम्मान से गाफिल हो तो तुम पर एक बारगी झुक पड़े, हमला कर दे। और तुम पर गुनाह नहीं अगर तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ हो या तुम बीमार हो कि तुम अपना असलिहा उतार रखो और अपना बचाव ले लो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो, खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए। फिर जब तुम मुतमईन खातिर जमा हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज कायम करो। बेशक नमाज मोमिनों पर बाकायदे वक्त मुकर्रर औकात में फर्ज है, और मुफार का पीछा ताकुब करने के हिम्मत न हारो। अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो बेशक उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसे तुम्हें दुख पहुंचता है, और तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो जो वह उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की सच्ची ताकि आप लोगों को दरमियान फैसला कर दे, जो आपको अल्लाह दिखा दे, सुझा दे, और आप न हो दगाबाजों के तरफदार।